Hello students, welcome again in this series of lectures on network theorem. And as I told you earlier also that this unit is divided into two parts. First part addresses the network theorem and second part addresses the power which is consumed or dissipated or observed across any network. So today's topic is discussion on the topic of the power. Yeah. So if we generally define, there can be three types of power: active power, which is also known as true power, then the reactive power, and then the apparent power. To make you understand this topic in a better manner, uh, I have shown here a picture of a glass which is half filled by water and half filled by air. Okay, so apparently you can say that the glass is fully filled. You might have also heard about the saying that if you are a very positive man, then you should always believe that the glass is fully filled, and accordingly the personality is analyzed. But we are not here to discuss that aspect. That is the aspect which is discussed in the interviews when you will appear in the final year. So that is another thing. What I am saying, that apparently I can say that the water is that the glass is fully filled, but is it true in the real sense? If I want in terms of the water, it is not. Water is half filled, so active power means the power which is actually I can say consumed, and reactive power means the power which is the reaction of the some components in the circuit. Okay, so they don't dissipate the power, though they can consume the power, but they don't dissipate the power. So if I divide the passive elements into the two parts, as we have already done in the uh, earlier cases when we were discussing about the behavior of resistor, capacitor, and inductor in the second unit, starting of the second unit, if you remember. So you find that resistor is independent with respect to time. The behavior of the resistor is independent with respect to time. And this is why they are the real consumer, or they are the real dissipator of the power. Okay. And the inductor and capacitor, though they also deal with the voltage and current in the different manner because they are dependent on the time, but they are not actually dissipating the power. So active power means that power which is actually dissipated across any circuit or across any element in the circuit, and reactive power is actually the phantom power, which is written here in the line. Reactive means the phantom. Phantom, you might have heard about the movie of Phantom. What is phantom? Phantom means which is actually not there. It appears to be there, but it is actually not there. Okay, so a kind of deceptive perception. Okay, a kind of deceptive perception it gives. So reactive power means the power consumed or dissipated across the inductor and capacitor, and they actually don't dissipate the power. But since they deal with the current and voltage, we cannot ignore the power across that. As in this case, the glass is also half filled by the air. So that place is not vacuum. Vacuum is the place where air is also not present. So here you cannot say that the glass is the half portion of the glass is the representation of the vacuum, because air is present there. So this is how we cannot see the air, but air is present. This is uh, the correct terminology by which, or the analogy by which, we can relate the reactive power with the air. Is it not? Because reactive power is the power which appears to be present, but it is actually not present, just like the air. So I hope the concept is clear to you. So apparent power is the combination of active power and reactive power. Okay. So just to elaborate this, or just to write the theory about, if anyone asks you, तो आप किस तरीके से उसको लिख सकते हैं? तो apparent, we know that reactive loads such as L and C dissipate zero power, yet the fact that yet है वो get नहीं ना, yet the fact that they draw voltage and draw current gives the deceptive perception. Deceptive spelling गलत लिखी हुई यहाँ पे, DEC, deceptive impression that
they actually dissipate power. This phantom power is called as reactive power and it is measured in the unit of VAR, voltage ampere reactive. It is symbolized by Q. Q से इसको symbolize करते हैं जो reactive power है इसको. The actual amount of power being used or dissipated in a circuit is called true power और इसको हम P से denote करते हैं और इसको measure करते हैं watts में. The combination of active and reactive power is known as the apparent power और इसका जो product है वो वोल्टेज और करंट के विदाउट रेफरेंस टू द फेस एंगल हम लोग अपेरेंटली उसको कैलकुलेट करते हैं और इसको एस से डिनोट करते हैं, सॉरी विदाउट नहीं, विद द फेस एंगल, और इसको एस से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है. इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं पावर ट्रायंगल. पावर ट्रायंगल में जो बेस है वो P है, P मतलब एक्टिव पावर. एक्टिव पावर को P डिनोट करता है. Q जो है, जो परपेंडिकुलर है वो Q है जो डिनोट करता है रिएक्टिव पावर को. और इस फाई के अकॉर्डिंग ही हमने VI साइन फाई और VI कॉस फाई को डिफाइन किया है. आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन फाई और कॉस फाई कैसे लेते हैं. ठीक है. अब पावर ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो S की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम अंडरस्कोर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगी. ठीक है. और ये S जो है दैट इज द एपेरेंट पावर कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q. ठीक. तो इसको पावर ट्रायंगल बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको. P को हम वॉट से डिनोट करते हैं. P जो है वो I स्क्वायर इंटू आर हो सकता है या फिर V स्क्वायर अपॉन आर हो सकता है. ठीक है. क्योंकि रेजिस्टर ही एक्चुअली असली डिसिपेटर है पावर का या कंज्यूमर है पावर का. हम Q निकालने की कोशिश करेंगे तो Q I स्क्वायर इंटू एक्स होगा या V स्क्वायर अपॉन एक्स होगा. अभी X क्या, व्हाट इज X? X मींस रिएक्टेंसेस ड्यू टू द इंडक्टर और द कैपेसिटर. ओके. एंड द लास्ट वाला जो S है, S इक्वल्स टू होता है S I स्क्वायर इंटू Z और V स्क्वायर अपॉन Z. फॉर्मूला देखिए सेम है. एक बार R यूज किया, एक बार X यूज किया और लास्ट में क्या यूज किया, Z. क्योंकि Z इम्पीडेंस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इम्पीडेंस है इट कैन बी रेजिस्टेंस, इट कैन बी रिएक्टेंस. सो एक कॉमन टर्म हम लोग यूज करते हैं इम्पीडेंस. S का जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर, Q का यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और P का यूनिट वॉट. वॉट को ही हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में हम लोग स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. अब ये सर्किट देखिए, I की वैल्यू 2 एम्पियर है, 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज का ये AC सप्लाई है और ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है. इसके अक्रॉस हमको PQS निकालना है. तो P क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर. ठीक है. सीधे सीधे आपने I और R को मल्टीप्लाई कर दिया, I स्क्वायर इंटू आर को आपने फॉर्मूला निकाल लिया. I स्क्वायर इंटू एक्स. क्या कोई रिएक्टिव एलिमेंट है इस पर्टिकुलर सर्किट में, क्या कोई इंडक्टर कैपेसिटर दिखता है आपको? तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो S ऑब्वियसली किसके इक्वल हो जाएगा, P के. इज इट नॉट? क्योंकि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. सो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर करेंगे, ये इग्नोर करेंगे ना, या स्क्वायर Z यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि आपके पास कोई यहाँ पे L और C प्रेजेंट नहीं है. तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 240 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मिलेगा और 240 का स्क्वायर को जब आप अंडर रूट करेंगे तो 240 ही आ जाएगा. और S का जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर होता है, VA है वो. ठीक है. जहां जहां पे भी मैंने आपको बोला है कि आपको जहां पे मिस्टेक्स है मैं आपको वहां वहां पे बताते जा रहा हूँ ना. ये एक नोट्स है जिससे मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ. ठीक. तो आप जो है उसको देख लेंगे और उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेंगे. ठीक है. ये एक और सर्किट है. अब इसमें देखिए R नहीं है, सिर्फ क्या है इसमें, एक 160 मिली हेनरी जिसका रिएक्टेंस दिया हुआ है 16.319. तो इसमें P एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों P एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि R की वैल्यू 0 है. तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी. Q निकाल सकते हैं. Q कैसे निकालेंगे भाई, I स्क्वायर इंटू आर करके. I की वैल्यू कितनी है, 1.989 एम्पियर और रिएक्टेंस की वैल्यू I स्क्वायर इंटू सॉरी X करके. रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 16.319, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया Q. अब अगेन इसमें Q प्रेजेंट है, P प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. तो अगेन S की वैल्यू इक्वल हो जाएगी Q के, ऑब्वियसली. एक और क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में आपको R भी दिया हुआ है और XL भी दिया हुआ है. अब इस केस में आपको P भी निकलेगा, Q भी निकलेगा और S भी निकलेगा अकॉर्डिंग टू दी अब फॉर्मूला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द नेटवर्क शोन इन बिलो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर पावर से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो ऊपर के मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए ये तो 2 मार्क्स में आते हैं. अगर कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा. The network shown in the below figure is operated in sinusoidal steady state with element values given. V की वैल्यू है 100 cos 2t वोल्ट.
एंड डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है, और इफेक्टिव करंट इन ईच पैसिव एलिमेंट। इफेक्टिव करंट इन ईच पैसिव एलिमेंट का मतलब ये है कि 1/2 फेरेड के अक्रॉस कितना करंट आएगा, 1 H के अक्रॉस कितना करंट आएगा, और 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट आएगा। ध्यान से सर्किट को ऑब्जर्व करोगे, अगर V1 एक वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे एक करंट आएगा, और वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है ना। एक पार्ट आएगा 1/2 फेरेड के अक्रॉस, और एक पार्ट आएगा इनके अक्रॉस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो मतलब मुझे दो करंट निकालना है, एक इसके अक्रॉस करंट और एक इन दोनों के अक्रॉस करंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पावर एंड इमेजिनरी पावर। रियल पावर मतलब एक्टिव पावर, इमेजिनरी पावर मतलब रिएक्टिव पावर, P and Q। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई S इक्वल्स टू P प्लस JQ, जिससे हमने ड्रॉ किया वो पावर ट्राइंगल। और S का अगर हम डिटेल वर्जन चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब एक रियल और इमेजिनरी होगा, तो J तो आएगा ही, आप इसको आयोटा भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, है ना, क्लास 11th आई थिंक। सो S इक्वल्स टू VI cos phi प्लस J VI sin phi। और V और I जो है एक्चुअली क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज है। तो Vm अपॉन रूट टू, Im अपॉन रूट टू, Vm अपॉन रूट टू एंड Im अपॉन रूट टू इन बोथ द प्लेसेस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 cos 2t दी हुई है। अब जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हमको रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो वैल्यू दी हुई है मुझे L और C की, ये L और C से आपको रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो आप उसको फर्दर कैलकुलेट करोगे। तो XL इक्वल्स टू होता है J ओमेगा L, और XC इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन J ओमेगा C। आपको पता ही है ये L की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 1/2 है, यहाँ से 2J ओम और 1/J मतलब -J ओम का मुझे रिएक्टेंस मिल जाता है। अगर मुझे Z निकालना है, Z कैसे निकलेगा भाई, Z निकलेगा इन दोनों के एडिशन और इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, टोटल इंपेडेंस अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 + 2J। ठीक है, 2 + 2J मतलब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और 2J का ये जो है इंडक्टेंस, इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय ये किसके साथ पैरेलल में है, कैपेसिटर के साथ। तो कैपेसिटर का क्रॉस रिएक्टेंस कितना है, -J, इनटू डिवाइडेड बाय द एडिशन। टोटल Z निकाला है हमने, टोटल कहना चाहिए हमने क्या निकाला है, इंपेडेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश की। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे मेन करंट चाहिए। अगर आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या पता है, V पता है, आपको क्या पता है, इन सर्किट की वैल्यूज पता है। अगर मैं टोटल इंपेडेंस निकाल लूं, टोटल वोल्टेज अगर मुझे पता है, तो मुझे टोटल करंट पता चल जाएगा। जब तक टोटल करंट नहीं पता चलेगा तब तक मैं करंट डिवीजन कैसे अप्लाई करूंगा, और जब तक करंट डिवीजन अप्लाई नहीं करूंगा मुझे एलिमेंट्स के अक्रॉस करंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले टोटल इंपेडेंस को कैलकुलेट किया गया। टोटल इंपेडेंस को कैलकुलेट करने के बाद अब ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये है पोलर फॉर्म। आपको आपके कैलकुलेटर में रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करना और पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको पोलर फॉर्म में करना आसान होता है। ठीक है, और इन दोनों फॉर्म को हमको, हमारी प्रोफिशिएंसी इन दोनों फॉर्म को कैलकुलेट करने की होनी चाहिए। ठीक, तो आपने फर्स्ट ईयर में जरूर रेक्टेंगुलर पोलर पोलर रेक्टेंगुलर के फॉर्मूलेस को यूज किया होगा, नहीं किया है तो यू कैन इजीली गो एंड सर्च इन द गूगल एज वेल। और आप अपने कैलकुलेटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स मोड में जाते हैं तो अपने आप आपको रेक्टेंगुलर पोलर कन्वर्जन देखने को मिलेगा। थोड़ी सी आप जो है उसकी रिसर्च कीजिए और आपको पता चल जाएगा रेक्टेंगुलर पोलर और पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर को हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, ये आया था रेक्टेंगुलर का आंसर, उसको हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया। पोलर में कन्वर्ट करने के बाद, क्यों पोलर में कन्वर्ट किया भाई, क्योंकि V/Z निकालना था। V की वैल्यू कितनी है, जरा हम ध्यान से देखें, V कितना दिया हुआ है हमको प्रॉब्लम में, V दिया हुआ है 100 cos 2t, तो मुझे सिर्फ 100 से मतलब है। cos 2t तो उसका एंगल है, छोड़ देते हैं उसको, तो 100 मैग्नीट्यूड से मतलब है क्योंकि, और t के साथ कोई प्लस माइनस शिफ्टिंग नहीं है इसलिए वहां पे 0 एंगल है। तो 100 अपॉन दिस, तो I की वैल्यू कितनी मिल गई, 79.05 एट एन एंगल ऑफ 71.56 डिग्री। और इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो cos 2t प्लस 71.56 हो गया। ये है मैग्नीट्यूड और ये है उसके एंगल का फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है, S इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi J sin phi, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। VRMS की वैल्यू 100 अपॉन रूट टू, क्योंकि V 100 है और अपॉन रूट टू VRMS के कारण आ रहा है। I का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, ये देखिए 79.05, वहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन रूट टू। एंगल भी हम निकाल चुके हैं 71.56 डिग्री का, वहां से ये चीज आ गई, ये 79.05 है ना। 71.56 71.56 कॉस के और साइन के अकॉर्डिंग
माइनस इसलिए क्योंकि वैल्यू जो है आपको ओरिजिनली एंगल की कितनी आई थी, माइनस ही आई थी क्या, यहाँ पे इसने माइनस क्यों लिखा है। आई थिंक 71.56 लिखने से काम चल जाना चाहिए। ट्राई करिए, इसके आंसर को कैलकुलेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस तो नहीं आना चाहिए था। चलिए देख लेंगे आप लोग इसको, इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर करके आपको पता चल जाएगा। एस की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, और रेक्टेंगुलर के बाद ये उसका पोलर कन्वर्जन हो गया। पोलर कन्वर्जन करने के बाद आप P और Q को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है P और Q को कैसे कैलकुलेट करना है, कोई नई चीज नहीं है। तो वहां से आप P और Q को कैलकुलेट कर लीजिए। करंट डिवीजन रूल अगर मुझे अप्लाई करना है तो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे भाई, टोटल करंट, ये है हमारा टोटल करंट जो यहाँ पे हमने निकाला है 79.05 जिसकी वैल्यू आई है। अगर मुझे इसके अक्रॉस करंट निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, अपोजिट इम्पीडेंसेस से, डिवाइडेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड वाइस वर्सा। तो वही करने की कोशिश की गई यहाँ पे। ये देखो, ये हो गया आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई -2j+2 अपॉन डिवीजन ऑफ द समेशन ऑफ ऑल दिस। तो वहां से ये वैल्यू मिल जाती है, और यहाँ से IC की वैल्यू मिल गई, ये 100 cos 2t प्लस 90 डिग्री यहाँ से आ जाता है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वैसे ही फिर इंडक्टर के अक्रॉस जो वो वाला लेग है उसके अक्रॉस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू इस तरीके से मिलती है। इसको हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है या ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर पोलर कन्वर्जन ही मेन है, बाकी तो कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। फॉर्मूला बहुत ईजी है। ठीक, ये एंगल जो ऊपर दिया हुआ है इसको एक बार चेक कर लेना, उस एंगल से ये आंसर मिल रहे हैं कि नहीं आपको। ये जो 2050.22 और 3952 ये आंसर सही है, बट ये एंगल सही तरीके से लिया गया है या नहीं लिया गया है वो आप लोग चेक कर लेना। अगर ये आंसर मिल रहे होंगे आपको, ये एंगल ले लेना, अगर नहीं मिल रहे होंगे तो एंगल को पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने वो चेक नहीं किया, रीचेक नहीं किया उस चीज को। नेक्स्ट है, इन अबव क्वेश्चन फर्स्ट टर्म इज साइनोसॉइडल टर्म, वी नो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइड over its period is 0 because area under the sinusoid is positive. Half angle is cancelled by area under negative half of the cycle, obviously. ठीक है, Vt की वैल्यू इतनी दी हुई है, It की वैल्यू इतनी दी हुई है, हमको इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर निकालना है। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है वोल्टेज का, और करंट का एंगल कितना दिया हुआ है -10 डिग्री का। Im की वैल्यू 10 है, Vm की वैल्यू 120 है, और W की वैल्यू कितनी है 377 है, मतलब ओमेगा टी प्लस जो फॉर्मूला होता है। तो वहां से ये PIT का फॉर्मूला लगा लिया गया है। ठीक है, आपको पता ही है कि किस तरीके से फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है ना। एक कॉस वाला फॉर्म है ना, इसमें तो देखिए दोनों ही कॉस वाले फॉर्म है, वोल्टेज के भी और करंट की भी, कॉस और साइन अलग अलग नहीं है ना। तो ये भी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कॉस और साइन नहीं दिया हुआ है तो कोई कन्वर्जन करना पड़ेगा, कि आप कर भी सकते हो, आपको पता है कॉस थीटा को साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी आप बना सकते हो, अदरवाइज अगर आप यहाँ से भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ये 120 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करके ही वो 100 आ गया है ना, क्योंकि Vm/√2 इंटू Im/√2 लिखते हैं अपन, तो √2 का कैलकुलेशन किए तो ये 2 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये 120 इंटू 10 करके 1200 हो गया। बाकी ये तो एंगल है, एंगल को आप सॉल्व कर लीजिए, इस तरीके का आंसर मिल जाएगा पावर एवरेज का। ठीक है, ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट लो इम्पिडेंस ZL दैट मैक्सिमाइज द एवरेज पावर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, व्हाट इज मैक्सिमम एवरेज पावर। तो ये अगेन वही सर्किट है, सर्किट से आपको एवरेज पावर निकालने की कोशिश करनी है। तो VTH RTH निकालना है, क्यों, क्योंकि सर्किट में मैक्सिमम एवरेज पावर निकालने बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब ये कॉम्बिनेशन किसका हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम प्लस पावर वाले कैलकुलेशन का जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा। अब आप ध्यान से समझेंगे तो मैक्सिमम पावर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थेवेनिन्स के ऊपर। तो इसमें थेवेनिन्स भी लगाना है, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला भी लगाना है, और पावर का कैलकुलेशन तो करना ही करना है। ये देखिए भाई, तो इस तरीके से VTH RTH निकाल ली। अब यहाँ पे VTH और RTH निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो कन्वर्जन है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में लिखने आना चाहिए, अगर नहीं लिखने आएगा तो कैलकुलेशन नहीं बनेगा। जैसे ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एंगल्स के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना इजी पड़ता है। ये अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा होगा J वाले फॉर्म में, तो आप मल्टीप्लिकेशन करने में आपको डिफिकल्टी होगी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से RTH और VTH निकाला गया है, RTH को कैलकुलेट कर लिया, VTH भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व है, कोई नई चीज तो है नहीं। ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, इसकी कोई इस रिएक्टेंस का कोई मतलब नहीं है।
अब VTH निकालना है, मतलब आपको इस लेग में क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। क्या किया गया VTH निकालने के लिए भाई, सिंपल KVL का इक्वेशन लगाया गया और VTH को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, जैसे ही VTH कैलकुलेट हुआ, आपको RTH पता चल गया, VTH पता चल गया, तो आपको V²/4 RTH का फॉर्मूला लगा लेना है और P मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये सॉल्व है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और देख लेंगे कि किस तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पावर चैप्टर। पावर चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, और ये जो यूनिट है आपका यहाँ पे एंड होता है। इस यूनिट के अंदर सारे थ्योरम्स हम लोगों ने डिस्कस किए और पावर वाला ये सॉल्यूशन डिस्कस किया। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि 14.21 प्रॉब्लम जो है उसको आप सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बेस्ड है 14.20 पे। जो हम लोगों ने 14.20 सॉल्व किया, वैसे ही 14.21 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ यूनिट। So we have completed 4 units of your syllabus, starting from two-port, then initial condition, then Laplace transform, and then network theorems. 4 units are completed. The last unit is sinusoidal steady state analysis that we will start from the next lecture. Thank you for watching.